Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 7 cubes and cube roots. We are now familiar with what are cube numbers or perfect cubes, and today we are going to learn about cube roots. A natural number m is the cube root of a number n if n is equal to m cube. Let us take one example. Let us take the number 3. अगर हम 3 को 3 से ही 3 times multiply करें तो हमें मिलता है 27 and this 27 is called 3 cube. 27 is 3 cube and the cube root of 27 is this number 3. 3 को 3 times multiply करने से हमें 27 मिला है, तो 27 को तो हम कहते हैं 3 cube और 3 को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 और इस क्यूब रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जहाँ पर ये स्मॉल 3 लिखा हुआ है बिसाइड्स दिस सिंबल. ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 शुड बी अ स्मॉल फिगर हियर एंड हियर वी आर हैविंग क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू 3 using this symbol. Let us take one more case. We know that 64 is equal to 4 into 4 into 4. And this is nothing but 4 cube. Now how do we write the cube root of 64? First we form this symbol and here we write a small 3 and cube root of 64 will be now 4. ऐसा क्यों? क्योंकि 4 को ही 3 times multiply करने से हमें 64 मिलता है, तो 64 तो कहलाता है cube of 4 and this 4 is called the cube root of 64. तो पहले जहाँ हम एक नंबर को 3 times लिख रहे थे वहीं अब उसी नंबर को एक टाइम लिखना है for cube root of the number given here. We take one more case. 5 cube is 125. तो 125 का cube root क्या होगा? Write a small 3 here. It will be equal to 5. Why is it 5? क्योंकि 5 को ही तो 3 times multiply करने से 125 मिलता है, इसलिए cube root of 125 will be 5 itself. बात समझ में आई? Let us take this table here. Now have a look. 1 cube is equal to 1. तो इस 1 का cube root क्या होगा? यही 1 back हमें मिल जाएगा. इसी तरह से 2 cube is 8. तो 8 का cube root क्या होगा? 2. Because when we multiply 2 by itself 3 times तो हमें 8 मिलता है, इसलिए 8 का cube root क्या हुआ? 2 itself. और यहाँ पर आप देखिए, again we are having this 3 cube is 27 and cube root of 27 is 3 again. 4 cube is 64 and cube root of 64 is then 4. 5 cube is 125 and cube root of 125 is again 5. 6 cube is 216 and therefore cube root of 216 is 6. 7 cube is 343 and therefore cube root of 343 is 7. Again 8 cube is 512 and cube root of 512 is 8. 9 cube is 729 and cube root of 729 is 9. 10 cube is 1000 and cube root of 1000 is 10 back again. So what do we see? We see that finding the cube root of a number is just the inverse operation of finding the cube of a number. यहाँ पर cube हो रहा है और यहाँ पर उसका inverse हो रहा है cube root. Getting the point here? Now we learn how to find the cube root of any given number, a big number. Cube root through prime factorization method. Here we are taking this big number 3375. इसका cube root हम कैसे निकाल सकते हैं? By prime factorization method. इसके लिए पहले हम जो नंबर दिया हुआ है उसके prime factors ढूंढेंगे. Let us write the number. Draw these lines. Now it is divisible by 3. So we divide by 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6 and then 3 5s are 15. Again by 3 it will go 3 times, 3 3s are 9, 2 and 2 7 times 21, again 5s are 15. Now again we divide by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. 125 is 5 cube. तो अब हमें 5 से divide करना चाहिए. It will go 25 times and again 5
5 times, then 5 one time. Now we can easily write the prime factors of this number. ये हमें मिल रहा है 3 into 3 into 3 and then 5 into 5 into 5. Now we need to find the cube root of 3375. We will get it from here. अब आप देखिए यहाँ पर 3 एक ट्रिपलेट फॉर्म में है और 5 भी एक ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो क्यूब रूट के लिए हम इनमें से एक नंबर यहाँ लिखेंगे, ओनली 1 टाइम 3. तीनों 3 नहीं लिखने हैं, ओनली 1 टाइम वी विल बी राइटिंग द 3 आउट ऑफ दिस गिवन ट्रिपलेट. और इसी तरह से इस ट्रिपलेट में से भी हम एक ही नंबर लेंगे 5 और ये मिल जाएगा हमें 3 5 15. तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इट इज़ दिस नंबर 15. और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 15 क्यूब इज़ दिस नंबर 3375. अगर हम 15 को 15 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें यही नंबर मिल जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि क्यूब रूट लेते समय ये जो ट्रिपलेट है इसमें से एक ही नंबर लेना है यहाँ पर, और इसी तरह से जो भी ट्रिपलेट है उसमें से एक ही नंबर लेंगे और तब हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ द नंबर whose prime factors we have found. Getting the point here? Now let us take one example. This is example 6 from your book. Find the cube root of 8000. So first we find the prime factors of 8000. Let us write down the number here. We will divide by 2 4 times and 3 zeros, again by 2 2 times and 3 zeros, 2 1 time and 3 zeros, again by 2 2 5s are 10, 2 times 0, again by 2 you will get it 250, again by 2 125. और ये है 5 क्यूब, 5 into 25 and then 5 5s are 25 and then 5 1s are 5. Write down the factors here. You will be getting 1 2 3 4 5 6. 6 times is 2. 1 2 3 4 5 and 6. And here we have 3 times 5. Now we need to find the cube root of 8000. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 है ये छोटा सा ही लिखना होता है यहाँ पे. अगर आप इसे बड़ा लिख लें तो ये तो मीनिंग ही बदल जाएगा. इसका मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8000 और ये हमारा मीनिंग यहाँ पर नहीं है. इसलिए याद रखिएगा ये 3 छोटा सा लिखना है बिसाइड्स दिस सिंबल. लेट मी इरेज दिस. Yes, here we have now just form the triplets. ये हो गया first triplet, second and third. और अब cube root के लिए हम हर triplet में से एक एक नंबर लिख लेंगे. This will give us 2, 1 2 from here and 1 5 from here. इस triplet में से एक 2 ले लिया, इस triplet में से हमने एक 2 ले लिया और इस triplet में से एक 5 ले लिया और ये हमें दे रहा है 2 5s are 10 and into 2 it's 20. So cube root of 8000 is 20. Getting the point? We have one more example. Find the cube root of 13824 by prime factorization method. Again we begin the solution by finding the prime factors of this number. The prime factorization of 13824 is, let us write this number 13824. Obviously ये even number है तो 2 से शुरू करेंगे division. 2 6 are 12, 9s are 18 and 1 2. Again by 2, 3 times, 4 times, 5 and 6. Again by 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 times and then 8 times.
again by 2, 2 8s are 16, 6 are 12, 4s are 8, 2 4s are 8, 3 and 2, again by 2, 2 1 and 6, again by 2, 2 1s are 2. Now just have a break. ये 1 तो छोटा नंबर आ गया बीच में, तो अब हम लाएंगे एक 0, 1 0 and now 2 8s are 16, it's 108. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 18 लिखकर अपना आंसर गलत कर लेते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट बाय 2 54, अगेन बाय 2 27, और ये 27 है 3 क्यूब, इट विल गो 3 9s are and then 3 3s are, then we have 3 1s are. Now simply write these factors here. How many 2s are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then we have 3 times 3. इसको हम इस तरह से ले सकते हैं. देखिए आप, ये फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट और फोर्थ ट्रिपलेट. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. इस तरह से भी लिख सकते हैं. और अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे. 13,824. राइट अ स्मॉल 3 हियर, एंड हाउ वी विल गेट इट? 1 2 आउट ऑफ दिस ट्रिपलेट. या तो आप ऐसे सोचिए कि इस ट्रिपलेट में से एक 2 लेंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 2 लेंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 2 और इस ट्रिपलेट में से एक 3 लेंगे. या आप इस नोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ से ये आ गया 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और ये मिल गया हमें 3. एंड दिस इज़ 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. तो क्यूब रूट ऑफ 13824, 13,824, it's 24. This is the answer. Next we have finding cube root by estimation. Estimation का मतलब अंदाज़ा लगाकर हमें क्यूब रूट निकालना है without actually doing any calculation, just getting an idea of what can be the cube root of any given number. For this, first let us recall the cubes that we have learnt so far. We know 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27. आप सबने याद कर लिया होगा, I suppose this. 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube it's 216, 7 cube it's 343, 8 cube it's 512, 9 cube it's 729 and 10 cube it's 1000. Now how we will find the cube root of this number just by estimation. और देखते ही हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, इसके 2 पार्ट्स करेंगे, टेकिंग 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट और द राइट मोस्ट डिजिट. ये फर्स्ट पार्ट 3 डिजिट्स का और ये सेकेंड पार्ट 375, ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप, और 857 ये हो गया सेकेंड ग्रुप. हमने इस नंबर के डिजिट्स को 3 के ग्रुप्स में बांट दिया है. और कहाँ से फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं? राइट मोस्ट डिजिट से. अब पहले हम फोकस करेंगे इस ग्रुप में. यहाँ देखिए आप, लास्ट डिजिट है इसकी 5. तो ये सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 5 पर एंड होता है. और आप देखिए, इट्स द नंबर 5. 5 क्यूब एंड्स विद 5. तो यहाँ से हमें यूनिट्स प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट मिल जाएगी इस नंबर के क्यूब रूट में, और वो होगी 5. एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर क्योंकि 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स क्यूब रूट विल बी 2. 2 डिजिट्स विल बी देयर इन इट्स क्यूब रूट. और एक डिजिट होगी वंस प्लेस डिजिट, एक डिजिट होगी टेंस प्लेस डिजिट. तो वंस प्लेस डिजिट तो हमें मिल गई है और वो है 5. कैसे मिली? हमने ये जो ग्रुप है पीछे से लिया हुआ फर्स्ट ग्रुप, ये 5 पर एंड हो रहा है और हमें पता है कि 5 क्यूब एंड्स एट 5, तो वंस प्लेस डिजिट हो जाएगी 5. अब हम इस ग्रुप पे फोकस करते हैं.
857। ये देखिए आप कहाँ बीच में आएगा, इन दोनों क्यूब नंबर्स के बीच में आएगा। 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। इट्स ग्रेटर देन 729 एंड लेस देन 1000 एंड दिस 729 इज नथिंग बट 9 क्यूब एंड दिस इज 10 क्यूब 1000। तो अब हम इन दोनों नंबर्स में से छोटे वाला नंबर लेंगे। छोटे वाला नंबर यहाँ पर कौन है? 9। तो ये मिल जाएगी हमें 10th प्लेस डिजिट। एंड इट इज 9। तो इससे हमें क्यूब रूट मिल गया इस पूछे हुए नंबर का। लेट मी मेक सम स्पेस। क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 857,375। इसका क्यूब रूट देखिए, 1st प्लेस डिजिट है 5 और 10th प्लेस डिजिट है 9। तो 95 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस गिवन नंबर। और if you multiply 95 3 times you will be getting this number. You can check this answer. तो यहाँ हमने बिना कोई कैलकुलेशन किए अपने आप ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है? It can be 95. We take one more example and then it will be clear. Find the cube root of 17,576 through estimation. तो यहाँ हमें एस्टिमेट करना है कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। वी फर्स्ट बिगिन बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। वी हैव 2 ग्रुप्स। देखिए आप 5 7 6 ये बन जाएगा फर्स्ट ग्रुप यहाँ से स्टार्ट करते हुए, और ये बन जाएगा सेकेंड ग्रुप 17। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप। तो ग्रुपिंग है हमारा स्टेप नंबर 1। देन वी मूव टूवर्ड्स स्टेप 2। वी टेक ग्रुप फर्स्ट, दैट इज 576। इसको लेते हैं 576 को। अब आप देखिए ये किस पर एंड हो रहा है? इट इज एंडिंग विद 6। It is ending with 6 and which number is there whose cube ends with 6? It's 6 itself. आप देखिए यहाँ पर 6 क्यूब, it is ending with 6। और कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब 6 पर एंड हो। तो इससे हमें मिल रही है 1st प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंड 6 क्यूब ends with 6. Therefore, 1's place digit of the cube root let me make some space may be 6। तो हमें एक डिजिट तो मिल गई है। यहाँ पर आप देखिए क्योंकि 2 ग्रुप बन रहे थे तो क्यूब रूट में 2 डिजिट्स होनी चाहिए थी, और उसमें से भी हमें 1's प्लेस डिजिट मिल गई है और वो है 6। नाउ वी मूव टूवर्ड्स स्टेप 3। टेक सेकेंड ग्रुप, दैट इज 17। अब 17 को देखते हैं हम। 17 किसके बीच में लाई कर रहा है? देखिए आप, हमारे क्यूब नंबर्स हैं 17 से छोटा 8 और 17 से बड़ा है 27। ये 8 भी क्यूब नंबर है और 27 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और ये 8 है 2 क्यूब एंड 27 इज 3 क्यूब। अब इन दोनों में से भी छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली यू कैन सी हियर 2 is smaller than 3. Therefore, we take 2 as the 10th place digit.
हम टेंस प्लेस डिजिट को ले रहे हैं 2. Therefore, the required cube root is, अब देखिए टेंस प्लेस डिजिट है 2 और वंस प्लेस डिजिट हमने ली है 6, तो द नंबर इज 26. एंड इफ यू नाउ मल्टीप्लाई 26 बाय इटसेल्फ 3 times, you will definitely get this number 17,576. आया समझ में? एक बार फिर से देखते हैं हम. यहाँ हमने पहला स्टेप ये लिया कि जो नंबर दिया हुआ है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट, और 3 डिजिट्स हमने एक बार में लेने हैं. यहाँ पर 3 डिजिट्स मिल गए, यहाँ पर 2 बचे हैं, तो 2 ही डिजिट लेंगे हम सेकेंड ग्रुप में. जितने डिजिट बचेंगे उतने ही ग्रुप में लेंगे हम इन सेकेंड ग्रुप. फिर आप देखिए फर्स्ट ग्रुप लिया हमने 576, ये 6 पर एंड हो रहा है, तो इससे हमें मिल गई वंस प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट और वो हो गई 6. फिर हमने लिया ग्रुप नंबर सेकेंड, ये हमें मिल रहा है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, और इन दोनों में से भी छोटा नंबर है 2, तो इसे हम लेंगे टेंस प्लेस डिजिट, और इससे हमें क्यूब रूट मिल गया 26, और यही तो हमसे पूछा था. I hope it is clear to you. So with this, I hope you have understood what are cube roots and how to find them. In our next class, we will be taking up exercise 7.2 based on cube roots. Till then, goodbye.